Good morning, everyone. I hope everyone is fine. So class, it's a continuation of chapter 2, that is our Python. So class, we are going to start today we are going to do the practical, the topic which we have started in the last class, that is types of operator. So class, in the last class we have seen there are multiple types of operators. These are arithmetic operators, comparison operators, assignment operator, logical operator and membership operator. So class, today we are going to do the practical of that. So let's start with the first one, that is my arithmetic operators. As you all know that arithmetic operators are binary operators. They require minimum 2 values so that they can operate on them, right? And what are arithmetic operators? Plus, minus, multiply, divide and mod. So class, let's start with the practical. Here I am going to open the Python. So this is the screen. For you, I'm just making it like this. So let's start with the arithmetic operator. So class, in the arithmetic operator, I'm taking a variable with the name A and I'm giving a value with the 5. I'm taking another variable with the name B and I'm giving a value 10 to it. Now I want to display it. So class, display के लिए आप चाहे, there are multiple styles. I'll show you. First style, you can create a variable with the name C, जिसमें A की वैल्यू को किसके साथ आप ऐड कर देंगे? B के साथ. तो A वैल्यू इज व्हाट माय 5 एंड B वैल्यू इज व्हाट माय 10, राइट? तो ये A प्लस B मतलब 5 प्लस 10 कितना हो गया? 15. और वो किस में जाके स्टोर हो जाएगा? हमारे C वेरिएबल में. एंड आफ्टर दैट यू कैन डिस्प्ले इट विद द हेल्प ऑफ विच कमांड? प्रिंट कमांड, लाइक दिस. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टाइल टू डिस्प्ले. समटाइम्स मुझे सिर्फ आउटपुट दिखाना है, मुझे उसे सेव नहीं करवाना. Here we are first storing the value in C, right? फिर हम डिस्प्ले करवा रहे हैं. तो इट मीन्स हम पहले आउटपुट स्टोर कर रहे हैं, फिर उसे डिस्प्ले करवा रहे हैं. वी कैन डू द सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ लाइक दिस. A equals to 5, right? B is equal to 10 and I can do like this only. Print A plus B. तो इसमें कहीं आउटपुट वी आर नॉट स्टोरिंग इट, डायरेक्टली वी आर शोइंग द आउटपुट. द आउटपुट वुड बी 15, राइट? वी कैन ट्राई विद वन मोर स्टाइल लाइक A is equal to 5, B equals to 15, right? B equals to 10, right? And A plus B. तो कैन आई डू इट लाइक दिस? यस. सो क्लास, आपको प्लस करने के कितने स्टाइल हो गए? 3. The first style is here where first we are storing the value, then displaying it. Here with the help of print command we are directly displaying our output. Here without the print command we are displaying the output. Okay? So similarly हमने जैसे प्लस किया, अब प्लस की जगह यहाँ क्या कर सकते हैं? माइनस. माइनस के बाद you can apply multiply and you can apply divide and mod. So let's do one more practical of divide and mod, right? I'm just taking a new screen or I can continue it here only. So class, let's start. I'm just making my screen little bit up so that you people are able to understand. I just want to show the difference between a divide and a mod. Here I'm taking a variable whose value is equivalent to 20. Right? I'm taking a B variable whose value is equivalent to 2. I'm directly displaying. So A divided by B. A value is what? 20. B की वैल्यू क्या है? 2. तो मतलब मैं 20 को किसके साथ डिवाइड करूंगी? 2. तो आउटपुट कितना आना चाहिए क्लास? एग्जैक्टली 10.0. 0.0 दैट्स व्हाई इट इज कमिंग बिकॉज मैंने प्रिंट कमांड नहीं लिखी. इफ यू अप्लाई द प्रिंट कमांड तो आउटपुट बिल्कुल ठीक आएगा. एंड एज पर द डिवीजन रूल तो यहाँ पर ये आपका रेस्ट अमाउंट भी दिखा रहा है. ठीक है. नाउ आई हैव अप्लाइड द डिवाइड. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द मोड. सो A वैल्यू इज माई 20. B value is my 2. Now I'm doing A mod B. So class, यहाँ पर जो डिवाइड है वो हमेशा क्वोशिएंट देता है, लेकिन मोड आपको क्या देता है? रिमाइंडर. तो आप जब 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवीजन हो जाएगा, तो रिमाइंडर वुड बी 0. सो हेयर इज आवर आउटपुट वुड बी 0. सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्लैश जिसे आप डिवाइड कहते हैं एंड द परसेंटेज जिसे आप मोड कहते हैं. Slash will return you the quotient and mod will gives you the remainder. Okay, that is we have done the arithmetic operator. Now come to the comparison operator.
क्लास देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हमें एक आउटपुट मिला, लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपैरिजन ऑपरेटर तो मतलब ये हमारी किसी कंडीशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। जैसे एज ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए, भाई पासवर्ड ABC होना चाहिए, ईमेल ID abc@gmail.com होना चाहिए। तो इट इज बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस। तो हमारी कंडीशन सही है या नहीं है, तो दैट्स व्हाई दे ऑलवेज गिव्स अस द बूलियन वैल्यू। बूलियन मीन्स ट्रू या तो फिर false. So let's start with the practical. So here I'm opening a fresh Python screen for you. So this is a Python screen class, as you people can see it here also. ठीक है, let's start. Class A की value we have assumed 10, B की value we have assumed 15. ठीक है, so class remember comparison operator always gives you true or false. So मैंने किया EA क्या B के बराबर है? क्लास दिस इज नॉट अ सिंगल ऑपरेटर प्लीज, दिस इज अ डबल इक्वल्स टू। सिंगल इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इट मीन्स वो राइट हैंड साइड की वैल्यू किस में जाके स्टोर कर देता है, लेफ्ट हैंड साइड में। बट हेयर दिस इज द डबल इक्वल्स टू। डबल इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किसके साथ कंपेयर करता है, B के साथ। तो A की वैल्यू कितनी है 10, B की वैल्यू कितनी है 5। क्या 10 5 के बराबर है इक्वालिटी में? ऑफकोर्स नॉट। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। सिमिलरली A की वैल्यू ग्रेटर देन है B से, तो क्या देगा, ट्रू। वाई? बिकॉज A कितना है हमारे पास 10 और B कितना है 5, तो 10 ग्रेटर देन 5 है ना। ओके क्या A लेस देन B है, मतलब A की वैल्यू कितनी है 10 और B कितना है 5, क्या 10 लेस देन 5 है? बिल्कुल है। तो यहाँ पर हमें क्या देगा, फॉल्स। हम सो सॉरी, 10 इज नॉट लेस देन 5, तो हमें क्या देगा, फॉल्स। ठीक है, नाउ so class greater than equals to, I'll tell you one difference here. So for here I'm just taking a new value, or why to take new value, let's change the condition. ठीक है ना, condition what I'm giving, A greater than 10 है, A की वैल्यू इज what 10, तो 10 क्या greater than 10 है, नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा, false. क्या A greater than equal to 10 है, so class here greater than में वो उससे आगे की वैल्यू देखता है, afterwards, बट हेयर इट विल इंक्लूड द 10 ऑल्सो। तो A वो जो A की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, तो 10 बड़ा तो नहीं है, लेकिन 10 की वैल्यू किसके बराबर है, 10 से, तो हमें क्या देगा वो, ट्रू। ठीक है, सो हेयर इन दिस कंडीशन इफ यू विल सी, वो 10 से आगे की वैल्यू को कंपेयर करेगा। तो A की वैल्यू क्लास हमारे पास कितनी थी, A की वैल्यू थी हमारे पास 10, तो 10 क्या 10 से बड़ा है, नहीं है, तो हमें क्या देगा, फॉल्स। यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या हो गई, क्या 10 के बराबर या 10 से बड़ा है, बिल्कुल है, तो हमें क्या देगा, ट्रू। ऐसे आप लेस देन चूज कर सकते हो, ऐसे नॉट इक्वल टू चूज कर सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। सो क्लास असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए हेयर इट्स बेटर दैट आई शुड गो विद द न्यू स्क्रीन। सो लेट्स ओपन पाइथन हियर। ओके, it is taking time, I guess. Wait. Something happened. I'm just closing and I'm opening a new Python screen here. Okay. Let's start. Class assignment operator. जब भी हम कोई वेरिएबल लेते हैं उसमें कुछ भी वैल्यू असाइन करते हैं तो दैट वी डू विद द हेल्प ऑफ इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले इज इक्वल टू, राइट। तो हमने A की वैल्यू अज्यूम करी कि हमने कितनी दी, 60। ठीक है, अब मुझे A की वैल्यू जो कि 60 है, इमेजिन A मेरी कोई प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है। तो A मेरा कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस 60 है, वो प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, मतलब प्राइस में इंक्रीमेंट हो गया है। तो मैं क्या करूंगी, इधर, या आई हैव नाउ 2 ऑप्शंस। ठीक है, फर्स्ट मैं A की वैल्यू कितनी है 60, उसमें इमेजिन उसका प्राइस कितना इंक्रीज हो गया 5 में। ठीक है ना, तो 60 + 5 कितना हो गया, 65। नाउ आई हैव 2 वेज, या तो जो नई वैल्यू है मैं उसके लिए दूसरा वेरिएबल क्रिएट करूं, लाइक दिस, आई एम पुटिंग इज इक्वल टू, आई एम गिविंग अ वेरिएबल नेम B। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि भाई हम तो मान लो एक पार्ले जी का बिस्किट है तो हम तो पार्ले जी ही बोलेंगे ना उसको। पार्ले जी के बिस्किट 10 रुपीज का मिले या 15 रुपीज का मिले, मेरे लिए प्रोडक्ट का नेम क्या रहेगा, पार्ले जी। सिमिलरली मेरे लिए मेरे प्रोडक्ट का नाम है A, जिसकी वैल्यू अर्लियर इट वाज 60,
Now it has been incremented by 5, it becomes 65. तो मेरे लिए प्रोडक्ट का नाम ए ही रहना चाहिए ना. So that's why I will not create a variable with the name with another name. It's better I will update the value in the same variable and again I'll store the value in the same variable. So मैंने क्या किया, a की वैल्यू कितनी थी 60. ठीक है, मैंने 60 में कितना इंक्रीमेंट किया 5 का, तो इट बिकम 65 और वापस उसी वेरिएबल मैंने उसको ऐड कर दिया. ठीक है, तो आउटपुट कितना बन गया हमारे पास 65. तो डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, तो डिस्प्ले के लिए हम सीधा a लिख देते हैं. ठीक है, यू कैन यूज प्रिंट कमांड फॉर द राइट नाउ बिकॉज दीज आर वेरी शॉर्ट प्रोग्राम्स, इसलिए वी आर नॉट यूजिंग द प्रिंट कमांड, अदरवाइज वी आर सपोज टू यूज इट. ठीक है, आप प्रिंट कमांड में ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स ऑल ओके. ठीक है, तो आउटपुट कितना आ गया हमारे पास 65. ठीक है, अनदर वे, नाउ आई एम टेकिंग अ वेरिएबल विद द नेम b, मैंने उसकी वैल्यू 10 रखी. अब मुझे b के अंदर इंक्रीमेंट करना है 3 रुपीज का. ठीक है, और वापस ऑफ कोर्स व्हाई शुड आई क्रिएट अनदर वेरिएबल नेम, राइट? सो आई एम updating the variable, I am updating the value in the same variable and again storing in the same variable. But this is the same thing we are doing it here. This is the same thing we are doing it here. ठीक है, now the common thing is here we are repeating a 2 times here. Here we are again repeating b 2 times here. So class, as the assignment operator tells you कि please don't repeat one name again and again. Rather than repeating, do like this. So आप b equals to b plus 3 करो या b plus equals to 3 करो, both are same and you can directly display it. The output would be 13. Okay. Similarly आप माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. तो असाइनमेंट ऑपरेटर gives you a flexibility to reduce the code. Then you are using a same variable to update the value and you are going to store the same updated value in the same variable. So no need to repeat the same variable name again and again. You can make it short with the help of assignment operator. Next is our logical operator, and or not. So class, इसके लिए तो I'm going to take a very interesting example. ठीक है, and gives you true. ठीक है, when all the conditions are correct. Or gives you true जब सारी कंडीशन में कोई एक भी कंडीशन ठीक होगी. नॉट क्या करता है, जो इंटरनल कंडीशन है ना, अगर वो ट्रू देगी तो नॉट उसको अपोजिट करके आपको दिखाएगा. ठीक है ना, लेट्स सी द प्रैक्टिकल. सो हियर आई एम ओपनिंग अ न्यू पाइथन स्क्रीन. सो क्लास, हियर आई एम गोइंग टू टेक अ वेरी गुड एग्जांपल रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स. ठीक है ना. सो लॉजिकल ऑपरेटर, फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू एंड. मेरी कंडीशन में एंड आपको तभी मिलेगा जब आपके, इमेजिन आपके 3 टेस्ट हुए हैं. पहले टेस्ट का नाम हमने रख दिया टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3. अगर आपने तीनों टेस्ट में 35 या 35 से अबव नंबर लिए हैं तो ही ये आपको ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज वो आपको ट्रू नहीं दिखाएगा. तो ये अश्योरिटी कि सारी कंडीशन शुड बी चेक्ड एट द सेम टाइम, ये हमें कौन सा ऑपरेटर देता है, लॉजिकल ऑपरेटर. एंड कंडीशन के लिए हमें कौन से ऑपरेटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, कंपैरिजन ऑपरेटर. बिकॉज कोई वैल्यू बड़ी है, कोई वैल्यू छोटी है, बराबर है या नहीं है, वो हमें कौन से ऑपरेटर्स हेल्प करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स. सो लेट्स स्टार्ट. T1. ठीक है, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग वैल्यू फ्रॉम द यूजर. अगर आप चाहते हैं आप वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट इज टोटली योर कॉल. ठीक है, सो हमने यहाँ पे किया T1 की वैल्यू मैंने दी 56, T2 हमने वैल्यू दी 55, T3 हमने वैल्यू दी यहाँ पर 88. ठीक है, अब नाउ टाइम टू पुट द कंडीशन. T1, T2, T3, that is my test 1, test 2, test 3. तीनों में मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू कितने होने चाहिए, 35. तो मेरी कंडीशन रहेगी T1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 35. इसका मतलब टेस्ट 1 में मार्क्स 35 या उससे अबव होने चाहिए. दैट इज माई कंडीशन. अब इसको ज्वाइन करने के लिए हम क्या लगाएंगे, एंड मीन्स मेरे पास और भी कंडीशन है लेकिन ये सारी कंडीशन एक साथ ठीक होनी चाहिए. T2 स्पेस देना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अदरवाइज आपका कंप्यूटर भी कंफ्यूज हो जाएगा आप लिख क्या रहे हो. ठीक है, T2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 35. ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक इक्वल टू की जगह ये लग गया, और 35. एंड बिकॉज आई हैव 3 कंडीशंस ना, आई वांट दैट 3 कंडीशन शुड बी चेक्ड एट द सेम टाइम, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग एंड. T3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 35. क्लास, मेरे केस में ये है because T1 is 56 which is greater than or equal to 35. Same for T2, same for T3. Now press enter. It will gives you true. Right? Why? Because
मेरे T1 भी विच इज 56 इज ग्रेटर देन 35, T2 which is my 55 is greater than equal to 35, T3 which is 88 that is also greater than equal to 35. Now comes to another condition. I'm taking the same one but I'm just changing the condition over here. ठीक है, मैंने change में क्या किया? Now please understand. Now T1 मेरी condition now has been changed. It has to be greater than 60. It has to be greater than 50, greater than 60. ठीक है, ये let's put one condition ना, why to make it confused. ठीक है, तो हमने यहाँ पर तीनों में क्या कर दी 60. Now my condition has been changed. मैं चाहती हूँ मुझे ट्रू तभी मिले, या मेरे हिसाब से बच्चा पास तभी होगा, वो मुझे ट्रू तभी मिलेगा कंडीशन में जब तीनों टेस्ट में बच्चे के मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60. मतलब 60 या उससे अबव होने चाहिए, तभी बच्चा पास है, अदर बच्चा पास नहीं है. राइट. सो क्लास, नाउ व्हाट इज माय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ T1? दैट इज 56 व्हिच इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 60. My T2 is greater than equal to, I mean has to be greater than equal to 60, but my value of T2 is 55 which is not satisfying. T3 is 88 which is fortunately greater than equal to 60. So class, here T1 मेरी condition wrong हो गई because 56 greater than equal to 60 नहीं है. T2 which is my 55 भी greater than equal to 60 नहीं है. T3 which is 88 वो greater than equal to 60 है. So it means तीनों में से मेरी कितनी कंडीशन रॉन्ग हो गई? 2. ठीक है, एंड का रूल है, जितने भी एंड में लेफ्ट राइट कंडीशंस होती हैं जिसके बीच में यू आर प्लेसिंग एंड, वो मेरी सारी कंडीशन उसी टाइम पे साथ में ठीक होंगी, तो मुझे क्या रिटर्न करेगा? ट्रू. इन दिस सिचुएशन माई टू कंडीशंस आर रॉन्ग, वन कंडीशन इज करेक्ट, तो मुझे क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स. इज दैट ओके? सो हम एंड ऑपरेटर कब करते हैं? जब हमारी सारी कंडीशन एक साथ ठीक होनी चाहिए. जैसे हम जब व्हेन वी आर गोइंग टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द ATM, तो मेरा कार्ड भी वैलिड होना चाहिए, मेरा पिन कोड भी वैलिड होना चाहिए, पिन नंबर भी वैलिड होना चाहिए, देन यू कैन मेक अ ट्रांजेक्शन, अदरवाइज नॉट. Similarly, if you want to open an online account, you have to enter the email ID and the password. Both ID and the password has to correct at the same time. तो ये हमें रूल फोर्सफुली इंटीग्रेशन कौन देता है? लॉजिकल ऑपरेटर. बट कौन सा? एंड. लेट्स स्टार्ट विद द और. So class, for the or, I'm again taking a new screen over here. और ठीक है, मैं चाहती हूँ when we are talking about a college, imagine T1 आपने दिया 56, T2 आपने दिया again 45, T3 I'm taking a little bit higher 77. Here my checking condition would be 60, the same one. So I want T1, T2, T3, मतलब 3 tests you have to you would be cleared when you have to score more than 60 in that. तभी आपको बदले में क्या मिलेगा? ट्रू. अदरवाइज यू विल नॉट गेट अ ट्रू. ठीक है, तो मैंने लिखा T1 ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, और T2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, हाँ, और T3 greater than equal to 60. Class, if you talk about like this, oh, I had written the wrong spelling of or, let's make it correct. Okay. So class, here if you talk about our school system, तो स्कूल सिस्टम में टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 तीनों में ही कंपल्सरी है दैट यू हैव टू स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, विच वी हैव सीन ऑन लास्ट एग्जाम्पल. तभी आपको क्या मिलेगा? ट्रू. लेकिन और कॉलेज वाला आ जाता है. कॉलेज में क्या होता है कि भाई आप पास हो, आपने सारे एग्जाम्स में क्लियर किया. देखो, अगर सब में ही आप फ्लंक मीन्स फेल, अगर सारे एग्जाम में इफ यू आर गोइंग टू फ्लंक, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू प्रमोट इन द नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर. ठीक है ना? सो सब में ही फेल हो जाओगे तो नहीं हो सकता. लेकिन 5 में से अगर 2 सब्जेक्ट्स में यू गॉट फेल एंड 3 में यू हैव क्लियर्ड, तो यू वुड बी एलिजिबल टू प्रमोट और ट्रांसफर इन द नेक्स्ट सेमेस्टर और इन द ईयर. सिमिलरली और भी ये काम करता है, और कहता है कि यार जितनी मर्जी कंडीशन लगा लो, मैं तुम्हें ट्रू तब दे सकता हूँ जब सारी कंडीशन ठीक होगी, या जब कोई एक भी कंडीशन सही होगी तब भी मैं तुम्हें क्या दूंगा? ट्रू. हियर माई T1 वैल्यू इज 56 इज ग्रेटर देन 60. नो, तो ये मुझे बदले में क्या देगा? फॉल्स.
T2 greater than equal to 60 and my value of the T2 is 45. 45 is greater than equal to 60. No, इसने भी मुझे क्या दिया? False. But T3 is 77. It is greater than equal to 60. Yes. तो मतलब और के अंदर दो conditions are wrong but one condition is correct. तो ये मुझे क्या देगा? True. ठीक है, सारी कंडीशन भी ठीक होती तो भी ये क्या मुझे देता? True. तो और के लिए मिनिमम कितनी कंडीशन ठीक होना जरूरी है? 1. राइट? Let's take another example also. A की value I have given 7. I'm just taking a very basic example. B की value is 8 or 10. ठीक है, मैंने कंडीशन लगाई A की वैल्यू ग्रेटर देन, चलो एक और वन स्मॉल वेरिएबल आई एम टेकिंग 70 या 15. ठीक है, here I am putting a different condition. मैं चाहती हूँ A की वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए, B की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 20 और, ठीक है ना, और C की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 30. So my A is 7 greater than 10 है, no. B is greater than 20, no. C is greater than 30, no. तो क्या रिटर्न मिलेगा? फॉल्स. Now let's change the condition. ठीक है, मैं चाहती हूँ it has to be greater than 5, it has to be greater than 10. ठीक है, अब इसमें A की वैल्यू कितनी है? 7 ग्रेटर देन 10 है, नो. B की वैल्यू है 10 ग्रेटर देन 5 है, यस. C वैल्यू 15 इज ग्रेटर देन 10, यस. तो अब मेरी एक कंडीशन फॉल्स है, बाकी दो ट्रू है. इन दिस केस मेरी तीनों कंडीशन गलत थी, तो और जब तीनों कंडीशन गलत होगी तभी फॉल्स देगा. अब इसमें वन कंडीशन इज रॉन्ग, टू कंडीशंस आर करेक्ट, तब भी मुझे क्या मिलेगा? ट्रू. ठीक है, नाउ चेंज द कंडीशंस हियर. नाउ जस्ट सी ओवर हियर. A 7 is greater than 10, no. B is 10 greater than 15, no. C is my 15 is greater than 10, yes. So इसमें क्या हुआ? दो कंडीशंस रॉन्ग है, वन कंडीशन इज करेक्ट, तब भी मुझे क्या मिलेगा? ट्रू. ओके, तो हम कब यूज करते हैं? और जब हम चाहते हैं कि इनमें से कोई तो हो. नाउ क्वेश्चन इज कब यूज होता है? एक्चुअल रियल वर्ल्ड में कब यूज होता है? आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव अप्लाइड फॉर द पासपोर्ट, ऑनलाइन पासपोर्ट, and how many of you have or someone who is very near to you and who has fill up the form for the job like in naukri.com, monster.com, where you are forced to apply or fill up a big form where you need to mention that what are the subjects you have taken and how many degrees, how many diplomas you have done. ठीक है, so there could be multiple people who have done multiple diplomas, multiple degrees from different universities, because it's a rule. At the same time, you cannot do 2 degrees from the same college, from the same university. You can do 2 degrees at the same time from different university. That is possible. ठीक है, so अगर हम पासपोर्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, पासपोर्ट बनवाने के लिए you should there are multiple condition. You should be हैविंग योर बर्थ सर्टिफिकेट या तो 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, और क्या होना चाहिए? आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, इनमें से. और घर के एड्रेस प्रूफ के लिए यू शुड हैव सम इलेक्ट्रिसिटी बिल और राशन कार्ड की फोटोकॉपी इफ इट इज़ देयर, आधार कार्ड आल्सो. ठीक है, अब इनमें से मिनिमम मुझे 3 चीज़ें चाहिए. मेरे पास ऑप्शन कितने हैं? 5. ठीक है ना, या तो 3 होनी चाहिए या कोई 1 या 2 हो, तब भी इट विल वर्क. मैंने कहा चलो कोई एक तो हो, कुछ तो प्रूफ हो दैट यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो मैंने कितनी कंडीशन थी? 5. लेकिन मैं चाहती हूँ आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, 10th सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, इनमें से कुछ तो एक हो, राइट? तो उसके लिए मैं एंड नहीं लगाऊंगी, मैं क्या लगाऊंगी? और, क्योंकि 5 कंडीशन में से मुझे कोई एक चाहिए, राइट, सो दैट आई कैन प्रोसीड, मैं कुछ आगे काम कर सकूं. ठीक है, अगर 5 ही नहीं है तो आप तो एलिजिबल ही नहीं हो, तो गेट अ पासपोर्ट डन, राइट. लेकिन अगर मैं एंड लगा दूं तो एंड का मतलब है भाई आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आईडी, 10th सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट सब होना चाहिए. दैट इज मैंडेटरी सो दैट यू कैन प्रोसीड, अदरवाइज यू कैन नॉट प्रोसीड. इज दैट ओके? सो जहां हमारे पास ऑप्शन हो उनमें से कोई एक तो चीज हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा? और.
आप चाहते हैं नहीं जी सारी चीज़ें हों, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एंड। नॉट का कोई जनरली यूज़ नहीं है, वेरी फ्यू, आई मीन इन वेरी फ्यू कंडीशन वी यूज़ नॉट. फॉर एग्जाम्पल, a value is I have given 10, right? I have put not, ठीक है ना. ओके, नाउ बिफोर पुटिंग नॉट मैं चाहती हूँ a की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, तो a वैल्यू इज व्हाट माय 10. क्या 10 ग्रेटर देन 5 है? इफ यू विल सी यस, है ना, तो आपको क्या रिटर्न मिलेगा, ट्रू. लेकिन अगर मैंने नॉट लगा दिया, ठीक है, नॉट लगाते ही a ग्रेटर देन 5 है, बिल्कुल है, a वैल्यू इज 10, 10 इज ग्रेटर देन 5, लेकिन नॉट लगा आगे तो मुझे क्या उसका रिवर्स करके दे देगा. तो इंटरनल कंडीशन ने मुझे क्या रिटर्न किया, इफ इंटरनल कंडीशन इज गिविंग मी ट्रू, तो अगर आगे नॉट लगा है तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स. तो फॉल्स क्या करता है, जो भी कंडीशन होती है इंटरनल, जो उसके ब्रैकेट में कंडीशन होती है, उसका जो भी आउटपुट आता है उसको रिवर्स करके देता है. ओके क्लास. मेंबरशिप ऑपरेटर इन नॉट इन, generally I have taken the country वाला example और cities वाला example. We will see when we will do the dictionary and tuples और array. So class, now the motive is, हम comparison कर रहे हैं, मुझे बदले में क्या मिल रहा है, true और false. मैं logical operator लगा रही हूँ and और not, बदले में भी मुझे क्या मिल रहा है, true और false. भाई मैं true और false का क्या करूँ, मतलब imagine मैंने user से age ली, age greater than 18 होनी चाहिए, ठीक है. imagine that is my condition कि age has to greater than 18. मान लो यूजर ने डाली 23 ग्रेटर देन 18 है, हाँ है, तो आगे क्या, मैं क्या ट्रू लूँ, ट्रू लेके व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, राइट. सो कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर कभी भी अकेले काम नहीं करते. हम ट्रू फॉल्स का कुछ नहीं करते. मैं चाहती हूँ अगर मैं एज ले रही हूँ तो यूजर को कुछ मैसेज दूँ कि भाई मैंने एज क्यों ली है. इफ यू आर एंटरिंग एज, आई एम चेकिंग और आई एम पुटिंग अ कंडीशन दैट आई एम चेकिंग योर एज हैज टू बी ग्रेटर देन 18, तो व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट, ठीक है ना. आई नीड टू मेंशन दैट ऑल्सो. तो क्लास कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर गिव्स यू ट्रू एंड फॉल्स. हम ट्रू और फॉल्स का क्या करते हैं, हम उसके थ्रू आगे अपनी कंडीशंस लगाते हैं, उसके आगे थ्रू अपना प्रोग्राम चलाते हैं. लेट्स टेक एन फेसबुक एग्जांपल. यू आर एंटरिंग अ आईडी एंड पासवर्ड. अगर दोनों ठीक होता है तो क्या मुझे ट्रू नजर आता है, नहीं. आई विल गेट अ होम पेज. It means that is a gesture or that is my answer कि I have successfully logged in. Why? Because the home page is in front of my eyes. If I'm entering either password or email ID incorrectly, so that message it would be displayed in front of me that you have entered wrong ID and the password. Right? So class true or false सिर्फ एक मैसेज होता है, लेकिन हम बदले में यूजर को कभी ट्रू और फॉल्स नहीं दिखाते, हम बदले में उनको क्या दिखाते हैं, आउटपुट. तो इसलिए कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर कभी भी अकेले काम नहीं करते, वो एक कंडीशन के साथ काम करते हैं, जैसे हम बोलते हैं इफ. जैसे कि इफ को हिंदी में कहते हैं अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो क्या, तो इट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर वोट. तो मैसेज ट्रू फॉल्स की जगह क्या आना चाहिए, वेलकम फॉर वोटिंग. इफ योर एज इज नॉट नॉट ग्रेटर देन 18, इट मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, राइट. लॉजिकल ऑपरेटर्स में अगर आपके T1, T2, T3 में मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है तो आना चाहिए पास, ना कि ट्रू. अगर नहीं है तो आना चाहिए फेल. तो इसलिए कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर कभी भी अकेले काम नहीं करते, वो एक कंडीशनल कंस्ट्रक्ट के साथ काम करते हैं, जिसे हम बोलते हैं इफ. तो दैट इज आवर टॉपिक फॉर द नेक्स्ट क्लास. सो क्लास, लेट्स डू द, यू नीड टू डू द प्रैक्टिकल व्हाट वी हैव डन इट टुडे. ओके क्लास, थैंक यू.